Good morning, students. Okay, today I will discuss three different Mendelian disorders. Initially, I will discuss thalassemia, then I will discuss cystic fibrosis, and finally, I will discuss phenylketonuria. So, students, as you know that we are discussing Mendelian disorders. We already discussed hemophilia. We discussed color blindness. As you know that these two disorders are sex-linked disorders, recessive disorders. Right now, we are going to discuss thalassemia, and thalassemia is a autosomal recessive disorder. Means if there is a defect in the autosome, and if there is a defect in the gene which is present in the autosome, definitely it will pass on into the next generation, and this will cause some abnormality in the new offspring. Now we discussed what happens in case of sickle cell anemia. Now right now we are going to discuss what happens in case of thalassemia. Okay, thalassemia, as you all know that it's a autosomal recessive disease which occurs due to the mutation of genes, resulting in the reduced rate of synthesis of one of the globulin chain of the hemoglobin. I mean to say that ये autosomal recessive disorder है, जो कि यानी ऑटोसोम में जो प्रेजेंट जीन है इस जीन में आने वाले म्यूटेशन की वजह से दिखाई पड़ता है. एक्चुअल में जब भी थैलेसीमिया होता है तो थैलेसीमिया का पीछे रीज़न ये है कि एज वी नो दैट there is hemoglobin in the RBCs, and this hemoglobin is responsible for the carrying of the oxygen. ठीक है, and we know that this hemoglobin is made up of two types of chains, alpha globulin chain and beta globulin chain. ठीक है, तो there are two chains, alpha globulin chain and beta globulin chain. ठीक है, तो थैलेसीमिया जो है, जो भी थैलेसेमिक पेशेंट होगा तो उसकी या तो अल्फा ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होगी या तो बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होगी. अब हीमोग्लोबिन की चेन डिफेक्टेड है तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड होगा, और हीमोग्लोबिन अपना जो मेन फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, यानी ब्लड के साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, यानी कि जो पेशेंट होगा उसे एनीमिया यानी ब्लड की कमी या सिंपली भी एक वी कैन से दैट ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है ब्लड में, इसको एनीमिया बोलते हैं. ठीक है, ओके. एक्चुअली ये होता कैसे है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है, since we know that there are two chains and these two chains are causing two different types of anemia. ठीक है, or two different forms of thalassemia. That is if alpha thalassemia, the first one is alpha thalassemia and the second one is beta thalassemia. Now actually what happens in alpha thalassemia, in case of alpha thalassemia the alpha chain will be defected, in case of the beta thalassemia beta chain will be defected. Very simple. ठीक है, now what happens, there are two forms of thalassemia, that is alpha thalassemia, production of affected alpha globin chain which is governed by the genes which are present on the 16th chromosome. यानी 16th chromosome, there are 22 pairs of autosomes, यानी 16th जो क्रोमोजोम है उस 16 क्रोमोजोम में प्रेजेंट जीन में डिफेक्ट आने की वजह से अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है. वहीं जो बीटा थैलेसीमिया है, यानी बीटा ग्लोबुलिन चेन को बनाने के लिए कौन सा क्रोमोजोम का जीन रिस्पॉन्सिबल है, 11th क्रोमोजोम का. यानी 11th क्रोमोजोम के जीन में अगर डिफेक्ट आएगा तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा, वहीं अगर 16th क्रोमोजोम पे अगर डिफेक्ट आएगा तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स क्लियर. तो किसी इट्स अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी ऑटोसोम में से अगर एक ऑटोसोम आपका नॉर्मल है, दूसरा आपका इन्फेक्टेड है या डिफेक्टेड है, एबनॉर्मलिटी है, तो आपको कोई असर नहीं होगा, आप कैरियर बनेंगे. इफ बोथ ऑफ द ऑटोसोम्स आर डिफेक्टेड means both of the autosomes genes are abnormal, then in such condition thalassemia will occur, and it is of two types, alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia is caused due to the mutation in the 16th chromosome gene, while the beta thalassemia is caused due to the mutation in the 11th chromosomes gene. Is it clear? Now the second kind of genetical disorder, it is called it is also example of autosomal recessive disorder, and this is cystic fibrosis. Now it's also a lethal genetical disease, and this disease is caused by the defect in the 7th chromosomes gene. ठीक है, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो 7th क्रोमोजोम पे प्रेजेंट जीन होता है ये एक्चुअल में एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सॉल्ट, यानी ये सॉल्ट के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन.
अगर 7th क्रोमोजोम के इस जीन में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए तो नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनेंगी, अब नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगी एंड जो सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा द एक्सेसिव म्यूकस विल सीक्रेटेड बाय द बॉडी, ठीक है, एंड दिस म्यूकस ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लंग्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। तो 7th क्रोमोजोम पे के जीन पे डिफेक्ट आया, उसने नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाई, नॉर्मल की जगह उसने एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनाई, ठीक है, और जिससे सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, इंटरफेयर हो गया, और साथ में एक्सेसिव बॉडी से म्यूकस का सिक्रेशन स्टार्ट होता है एंड विच ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लंग्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। दिस इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दिस इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द 7th क्रोमोजोम, ठीक है। Now last one, phenylketonuria, and I think we already discussed it while we were talking about the concept of प्लियोट्रॉपी। मैंने कहा था एक सिंगल जीन जब मल्टीपल इफेक्ट को शो करता है, तो वहाँ भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था आपको, अगर आपको याद होगा, ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया PKU इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इट इज़ अ इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो एक इनबॉर्न एरर है, ये डिफेक्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस का, विच इज़ इनहेरिटेड एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, यानी कि ये भी एक तरह की ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज़ है। इट्स जीन इज एसोसिएटेड विद द 12th क्रोमोजोम, यानी कि ये जो डिफेक्ट आता है ये 12th क्रोमोजोम पे प्रेजेंट जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है। इट इज़ अ रेयर डिजीज इन विच इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। यानी कि इस एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है, इस एबनॉर्मेलिटी में जो 12th क्रोमोजोम में प्रेजेंट जीन होता है, वो जीन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्या होती है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलोज क्या काम करता है आपकी बॉडी में, विच इज़ नीडेड टू ब्रेक डाउन ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड फिनाइल एलानाइन इनटू द टायरोसिन इन द लीवर। यानी कि जब हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है तो ड्यूरिंग आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस एक अमीनो एसिड ब्रेक होता है और दूसरा अमीनो एसिड बनाता है, सिंपल अमीनो एसिड बनाता है। तो इसमें जो जनरली फिनाइल एलानाइन ब्रेक होना चाहिए और उसको टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस जीन फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानाइन ब्रेक नहीं होगा और टायरोसिन को नहीं बनाएगा। तो यानी जब फिनाइल एलानाइन ब्रेक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड एंड सम अदर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये आपका जो फिनाइल एलानाइन है ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है और ये कन्वर्ट होगा आपका फिनाइल पाइरुविक एसिड और सम अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा तो मेंटल रिटार्डेशन को कॉज कर देगा। और इसके साथ साथ इसके और भी और सिम्टम होते हैं, आपको याद होगा, स्टंटेड ग्रोथ होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है, पिगमेंटेशन ऑन स्किन होता है, ये कई सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ द इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलोज जिसमें नहीं बन रहा है, यानी जिसमें PKU डिजीज़ हो जा रही है, उसका आइडेंटिफाई उसकी यूरिन के टेस्ट से हम कर सकते हैं कि यूरिन में ये फिनाइल एलानाइन बहुतायत में देखने को मिलेगा, अबंडेंट अमाउंट में ये रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। वी डिस्कस्ड अबाउट थैलीसीमिया, वी डिस्कस्ड अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड वी डिस्कस्ड अबाउट फिनाइलकीटोनुरिया। हियर वी आर कंप्लीटिंग मेंडेलियन disorders. In the next video I will start chromosomal disorder. Till then, thank you and bye bye.